السلام علیکم ناظرین، تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید۔ مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو انتہائی زبردست تاریخی حقائق پر مبنی ہے۔ آپ نے اکثر قیامت صغریٰ کا ذکر تو سنا ہوگا، لیکن وہ قیامت صغریٰ آج سے 2000 سال پہلے آ کر گزر چکی ہے۔ ناظرین، یہ قیامت کیسی تھی کہ جب ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی تھی اور دوبارہ سے زندگی جنم لے کر اب اس عروج پر آ پہنچی ہے۔ ناظرین، اس واقعے کی مکمل تفصیلات ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھانے والے ہیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں، اور کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ ناظرین، آج سے 2000 سال پہلے ایک ایسی رات آئی جو 4 سال سے زیادہ طویل تھی۔ اس رات کے آنے سے قبل جب پچھلی رات سورج غروب ہوا تو کافی دیر تک آسمان پر چاند اور ستارے چمکتے رہے، اور پھر چاند ستارے بھی غائب ہو گئے اور آسمان بالکل تاریک ہو گیا۔ ناظرین، یہ تاریکی اتنی گہری تھی، اس زمانے میں روشنی کے لیے مشعلیں روشن کی جاتی تھی یا پھر تیل کے دیے جلائے جاتے تھے، جن میں مختلف اقسام کے تیل یا پھر چربی استعمال کی جاتی تھی۔ ناظرین، اس رات آنے سے قبل جن لوگوں نے سورج کو غروب ہوتے دیکھا تھا، ان میں سے آدھے سے زیادہ انسان اپنی زندگی میں دوبارہ سورج کو طلوع یا پھر غروب ہوتے نہ دیکھ سکے، بلکہ اس رات کے بعد دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی نے دوبارہ چاند ستارے اور دھوپ نہیں دیکھی، اور نہ ہی ان لوگوں میں سے کسی نے 4-5 سال زندگی میں یا فصلیں دوبارہ اگتی دیکھی۔ ناظرین، رات کا اندھیرا پھیلنے کے کچھ ہی دیر کے بعد دنیا کے تمام حصوں سے چاند اور ستارے آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے، اور رات کا اندھیرا اتنا گہرا ہونے لگا کہ بغیر دیے یا مشعل کے اپنے ہاتھ بھی دکھائی دینا بند ہو گئے۔ گھونسلوں میں بیٹھے ہوئے پرندوں میں بھی اس طویل رات میں بے چینی شروع ہو گئی، اور وہ اپنے گھونسلے چھوڑ کر آسمان کی تاریک فضاؤں میں ادھر ادھر پرواز کرنے لگے، اور شدید اندھیرا ہونے کی وجہ سے آپس میں ٹکرانے لگے، ایک دوسرے سے ٹکرا کر زمین پر گر کر زخمی ہونے لگے۔ کچھ لوگ جو کھلے آسمان کے نیچے رات کے اندھیرے میں سونے جاگنے کی حالت میں تھے، وہ بھی پرندوں کا شور سن کر اور آسمان سے چاند ستاروں کے غائب ہونے کو دیکھ کر پوری طرح سے بیدار ہو گئے اور انتہائی خوف زدہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید آسمان پر گہرے بادل چھانے کی وجہ سے چاند ستارے نظر آنا بند ہو چکے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو یہ انتہائی غیر معمولی لگ رہا تھا، کیونکہ ان کے مویشی خوف زدہ تھے اور اپنے کھونٹوں سے رسی توڑوا کر بھاگنے کے لیے اچھل کود کر رہے تھے۔ دنیا کے کچھ حصوں میں کہیں سورج غروب ہو رہا تھا اور کہیں پر شام ہو چکی تھی، کہیں لوگ شام کا کھانا کھا رہے تھے اور کہیں پر شراب نوشی کی محفلیں چل رہی تھی۔ ناظرین، اس زمانے میں شراب، زنا اور ہر قسم کی برائی عروج پر ہوا کرتی تھی۔ لوگوں میں گناہ اور ثواب کا فرق ختم ہو چکا تھا۔ لوگوں کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ کون سا فعل گناہ کے زمرے میں آتا ہے اور کسے گناہ یا برائی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جہاں پر آج یورپی ممالک ہیں، یہاں پر بڑے بڑے شہر آباد ہوا کرتے تھے، جہاں پر ہر قسم کے گناہ سر عام کھل کر کیے جاتے تھے۔ چنانچہ جیسے جیسے شام ہو رہی تھی، ویسے ویسے جوا خانوں اور کوبا خانوں میں ویسے ویسے بے حیائی کے مناظر نظر آنا شروع ہو رہے تھے۔ ناظرین، وہ جون کا ایک گرم مہینہ تھا، جہاں پر دن تھا، وہاں اچانک آسمان پر گہرا سیاہ پردہ چھا گیا۔ یہ نہ تو دھواں تھا اور نہ ہی بادل تھے، ایک سیاہ رنگ کی چادر تھی جو آہستہ آہستہ آسمان پر پھیلتی جا رہی تھی اور آسمان اور زمین کے درمیان حائل ہوتی چلی گئی۔ لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ آسمان پر جس جس جگہ پر سیاہ چادر پھیل گئی، وہاں پر مکمل طور پر اندھیرا چھا چکا تھا۔ اگلے 7 سے 8 گھنٹوں کے دوران پوری دنیا کے آسمان پر سیاہ چادر پھیل چکی تھی۔ ناظرین، جن علاقوں میں یہ سیاہ چادر پھیل چکی تھی، ان علاقوں سے پیشہ ور قاصدوں کو دوسرے علاقوں کی خبریں لینے کے لیے بھیجا جا چکا تھا۔ یہ قاصد اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر مختلف علاقوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ قاصد جہاں جہاں پر پہنچے، انہیں ہر جگہ پر آسمان پر یہ سیاہ چادر نظر آئی۔ جن علاقوں میں رات کے وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا، وہاں پر جب رات کا وقت گزر گیا تو لوگ جاگنے لگے، لیکن وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ ابھی تک آسمان پر صبح صادق کی روشنی نمودار نہیں ہوئی۔ لوگ ایک دوسرے کو جگانے لگے اور پوری فضا میں ہر طرف عجیب سی اداسی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔
ऐसे लग रहा था जैसे कायनात का सारा निजाम रुक गया हो या फिर वक्त के पहिए ने घूमना छोड़ दिया था। पहले आसमान पर सितारों की पोजीशन से लोग वक्त का अंदाजा लगा लिया करते थे, लेकिन उस रात तो आसमान पर कोई सितारा तक नजर नहीं आ रहा था। नाज़रीन, आम घड़ियों की तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के दिमाग में भी एक घड़ी नस्ब कर रखी है। उन लोगों को आज के जमाने जैसी सहूलियात चूंकि मुयस्सर नहीं थी, इसलिए उन लोगों की कुदरती हसासियत या फिर सेंसर बहुत ज्यादा एक्टिव थे। बज़ाहिर रोशनी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उनके अंदर कुदरत की दी हुई घड़ियां उन्हें एहसास दिला रही थी कि सुबह होने में आज गैर मामूली ताखीर हो रही है। पहले 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, फिर 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे और फिर पूरा दिन गुजर गया। तमाम लोग इस अंधेरे से इंतहाई खौफजदा होने लगे, क्योंकि अंधेरे में कोई फर्क नहीं आ रहा था। आसमान पर कहीं भी रोशनी की मामूली सी किरण भी नजर नहीं आ रही थी, बल्कि अंधेरा वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद गहरा होता चला जा रहा था। बच्चे भूख से बिलक रहे थे। औरतें रात के अंधेरे में बच्चों को खामोश करवाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन बच्चे किसी तौर पर भी चुप होने का नाम नहीं ले रहे थे, जबकि मर्द अपने खानदानों को झूठी सच्ची तसल्लियां देने की कोशिश कर रहे थे। लोगों के घरों में पिछले दिन का जो बचा खुचा खाना पड़ा था वो उसे खा चुके थे। वो सब इस बात पर परेशान हो रहे थे कि अगर 2-3 दिन यही सूरत हाल रही तो वो भूख से मर जाएंगे। अक्सर लोगों को उम्मीद थी कि ये पुरस्कार अंधेरा जिसकी किसी को समझ नहीं आ रही थी वो खत्म हो जाएगा, तो वो लोग कामकाज करना शुरू कर देंगे और अपने खाने पीने का सामान पैदा कर लेंगे। दूसरी तरफ जिन इलाकों में दिन के वक्त ये अंधेरा छाया था वो रात वालों की निस्बत ज्यादा खौफजदा थे, क्योंकि उन्होंने उस स्याह चादर को दिन के उजाले में आसमान को ढांपते हुए देखा था। उनको भी जब 24 घंटे गुजर गए तो वो भी इंतहाई परेशान होने लगे। यही सूरत हाल पूरे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, चीन, हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे पर थी। उस जमाने में इंसान अभी कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी का तयन करने तक नहीं पहुंचे थे। नाज़रीन, एक और बड़ी अजीब बात हुई कि जून के महीने में पूरी दुनिया में मौसम गर्म होता है, लेकिन जब से सूरज गायब हुआ था गर्मी एकदम से कम होने लगी थी और दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगा। पहले दिन जहां पर दिन के वक्त 35 डिग्री या 36 डिग्री टेम्परेचर हुआ करता था, एक रोज गुजरने के बाद वहां का दर्जा हरारत 20 डिग्री तक आ पहुंचा। इसी तरह जिन ठंडे इलाकों में 15 या 20 डिग्री था, अब वहां 7-8 डिग्री हो चुका था, जिसकी वजह से कुर्राए अर्ज को शदीद सर्दी ने लपेट में ले लिया। एक तरफ पूरी दुनिया स्याह चादर में लिपटी हुई थी, तो दूसरी जानिब गर्म इलाके भी शदीद सर्दी की लपेट में आ चुके थे। सूरज रोशनी का जो सबसे बड़ा जरिया है और कुर्राए अर्ज पर जिंदगी की बका का जामिन है, तो उस रात अहले जमीन सूरज की रोशनी से महरूम हो चुके थे। लोग इस इंतजार में थे कि हो सकता है कि आसमान पर फैली हुई ये स्याह चादर 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन गुजर गए, लेकिन सूरज के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। इतना भयानक अंधेरा था कि उस रात के अंधेरे में ना तो शिकार किया जा सकता था और ना ही दूध देने वाले जानवरों के लिए चारे का इंतजाम किया जा सकता था। जानवर खौफ के आलम में हो तो वो दूध देना बंद कर देते हैं। एक तो वो तमाम इंसानों की तरह खौफजदा थे, दूसरा उनको खुराक भी नहीं मिल रही थी, इसलिए उनके थनों में दूध नहीं आ रहा था। शहरों में कारोबार बंद हो चुके थे। इस सूरत हाल के बारे में हंगामी इजलास तलब किए जाने लगे कि अगर लंबे अरसे तक यही सूरत हाल जारी रही तो इंसानों की जिंदगियां बचाने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए। इसके अलावा मुंतजमीन ने अमनो अमान के हवाले से भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। सबका ख्याल था कि इन हालात में चोरी और डाका जनी और कत्लो गारत गरी के वाक़यात में बेपनाह इजाफा हो सकता है, क्योंकि भूख इंसानों से सब कुछ करवा देती है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। नाज़रीन, फिर दिन गुजरते गए, दिन हफ्तों में बदलने लगे। आसमान पर स्याह चादर उसी तरह से मौजूद रही, बल्कि लोगों को यूं लगता था कि दिन ब दिन उसकी स्याही में इजाफा होता चला जा रहा है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे लोगों के पास जमाशुदा खुराक तेजी से कम होती जा रही थी। उसी दौरान सर्दी की शिद्दत ने भी हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता चला गया। 1 महीने बाद यानी जुलाई में पूरा कुर्राए अर्ज जम चुका था। पहली और आखिरी बार चीन के उन इलाकों में भी शदीद बर्फबारी हुई जिसमें ना उससे पहले कभी हुई और ना ही बाद में। उस बर्फबारी ने खेतों में खड़ी फसलों को तबाह बर्बाद कर दिया। सूरज की रोशनी ना होने की वजह से वैसे भी फसलें तेजी से मुरझा रही थीं, जिसके बायस खुराक की कमी का अंदेशा पैदा हो गया।
नाज़रीन, जुलाई गुजरा, अगस्त गुजरा और फिर सर्दियों के महीने शुरू हो गए। दरियाओं के पानी बर्फ बनने लगे। अब खुराक के साथ साथ पीने का पानी भी नापैद होता जा रहा था। दूसरी जानिब इंसानों के अंदर तेजी से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलने लगी। सूरज की रोशनी, धूप जिन बैक्टीरिया के लिए मौत बन जाया करती थी, अब वो बैक्टीरिया तेजी से फल फूल रहे थे और इंसानों को अपना शिकार बना रहे थे। खाने पीने के ज़खायर कब के खत्म हो चुके थे। अंधेरे ने इंसानों की इखलाकी इक़दार को भी निगल लिया। रोटी के एक टुकड़े के लिए लोग एक दूसरे का खून करने लगे। लोगों को अपने और दूसरों के मालो दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं थी, न ही अजीमो शान इमारतों और जागीरों से किसी को गर्ज था। अब हर कोई रोटी के पीछे पागल हो रहा था। डाकू, चोर, रासिन अब सोने चांदी और हीरो जवाहरात की चोरियां नहीं कर रहे थे। अब वो किसी घर में दाखिल होकर रोटी, अनाज या फिर खाने पीने की अशिया तलाश करने लगे ताकि अपनी जिंदगी का सिलसिला जारी रख सकें। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या फकीर, क्या बादशाह, क्या नवाब, क्या शहनशाह और क्या गदागर, सबका हाल एक जैसा हो चुका था। अमीर लोगों ने अपने खुराक के ज़खायर को लूट मार से बचाने के लिए मुसल्ला चौकीदार रख लिए, लेकिन लूटने वाले भूखे नंगे लोग अपनी जानों की परवाह किए बगैर उन चौकीदारों पर हमला आवर हो जाते और खाने पीने के लिए जो भी हाथ लगता वो लेकर भाग जाते। नाज़रीन, एक काम बड़ा अजीब था कि शराब खाने, जुए खाने और जिनाकारी के अड्डे सुनसान हो चुके थे। जिस्म फरोश औरतें दो लुकमे पेट में डालने के लिए लोगों के पीछे मारी मारी फिर रही थी, लेकिन कोई उनको देखने तक का रवादार नहीं था। नाज़रीन, ये लूट मार, अफरा तफरी और भूख दुनिया के किसी एक हिस्से में नहीं बल्कि पूरी कायनात में फैली हुई थी। जब इस सूरत हाल को 6 महीने गुजर गए तो इस कहत ने इंसानों को निगलना शुरू कर दिया। जानवर और मवेशी तो इंसान कब के काट कर खा चुके थे। नाज़रीन, अब इंसानियत सोजी इस हद में दाखिल हो गई थी कि इंसानों ने मर जाने वाले इंसानों को खाना शुरू कर दिया। जो ही कोई मरता, उसके अहले खाना उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसको महफूज कर देते और फिर जिंदा रहने के लिए अपने प्यारों की लाशों की बाकियात को थोड़ा थोड़ा करके खाने लगते। नाज़रीन, वक्त गुजरता गया और 1 साल तक आसमान पर छाई हुई ये रात मजीद भयानक होती चली गई। नाज़रीन, उन दिनों पूरी दुनिया के इंसान ज़ुम्बीज़ बन चुके थे और इंसानियत से आरी हो चुके थे। बाज़ इलाकों में शदीद बीमारियों से मुतासिर इंसानों को भी मार कर खाने के वाक़यात शुरू हो गए। इस तरह एक तो जिंदा इंसानों की भूख मिट जाती और दूसरा बीमारी की तकलीफ में मुब्तला इंसान को अजियत से निजात मिल जाती थी। नाज़रीन, इसी तरह 2 साल का अरसा गुजर गया। फिर मिस्र में गिल्टीदार ताउन की वबा फूट पड़ी। इसके अलावा दुनिया के उन खित्तों में जहां पर सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त थी, वहां पर ऐसी वबाएं फैल गईं जो आज के कोरोना से मिलती जुलती थी। स्याह अंधेरे में ताउन की बीमारी ने तेजी से इंसानों का सफाया करना शुरू कर दिया। बस्तियों की बस्तियां और शहर के शहर खाली होने लगे। अब लोग वबा से मरने वालों की लाशों को खाने लगे। जब ये स्याह चादर आसमान पर फैली थी, उससे पहले दुनिया की आबादी 50 करोड़ थी, लेकिन 2 साल गुजरने के बाद 35 करोड़ तक रह चुकी थी। 2 साल के अंदर अंदर 15 करोड़ इंसान भूख, बीमारियों और वबाओं का शिकार होकर दुनिया से चले गए। नाज़रीन, वक्त गुजरता गया और स्याह अंधेरे में ना तो कमी आई और ना ही आसमान पर एक बार फिर कोई भी हल्की सी रोशनी दिखाई दी। इंसानों की तादाद इंतहाई तेजी से कम होती चली गई। यहाँ तक के 4 साल गुजर गए। इन 4 सालों में दुनिया की आबादी 50 करोड़ से कम होकर 20 करोड़ तक आ गई। यानी 30 करोड़ इंसान इन 4 सालों में मर गए। और फिर एक रोज मशरक़ वुस्ता और अरब के खित्तों में आसमान के ऊपर हल्की हल्की रोशनी नमूदार हुई। यूं लग रहा था कि जैसे 4 साल तक आसमान को छुपा कर रखने वाली उस स्याह चादर में सुराख हो चुका है, जो तेजी से बड़ा होता चला जा रहा था। ये खबर आनन फानन दुनिया में फैल गई, बल्कि दूसरे इलाकों में भी लोगों ने देखा कि बहुत तेजी से आसमान पर रोशनी फैलती चली जा रही है। और फिर अगले 15 रोज में पूरी दुनिया में पहली बार दिन का उजाला दिखाई देने लगा। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं ये सब क्यों और कैसे हुआ था? इस हवाले से मुख्तलिफ मफरूज़े कायम किए जाते रहे। उस जमाने के तारीख दान भी इसकी वजूहात बताने से कासिर हैं। सैकड़ों साल तक इस वाक़े से मुतल्लिक मुख्तलिफ नजरियात पेश किए जाते रहे, लेकिन आज तक किसी ने हतमी तौर पर नहीं बताया कि इतने तवील अरसे तक कुर्रे अर्ज़ पर छाए उस अंधेरे की वजूहात क्या थी। कुछ इसे एक साथ आतिशफशानों के फट जाने की वजह से राख को करार देते हैं,
कुछ उसे मुसलसल बादल छाए रहने की वजह कहते हैं, लेकिन नाज़रीन ऐसा अंधेरा ना तो बादलों और राख की वजह से पैदा होता है और न ही इतना तवील अरसा बादल या राख आसमान को ढांप कर रख सकते हैं। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि ये आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से 34 साल पहले का जमाना था। तारीख का ये दौर अल्लाह रब्बुल इज्जत की शदीद नाफरमानी और शिर्क का था। उस जमाने में अंबिया अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला मुअत्तल हो चुका था, चुनांचे अल्लाह से सरकशी अपने उरूज पर थी। बनी इसराइल के आखिरी नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को 550 साल पहले शक की बुनियाद पर सूली पे चढ़ा दिया गया था, लेकिन आप हकीकत में जिंदा हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर उठा लिए गए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर तक इन हजारों सालों के दौरान ऐसा कोई भी वक्त नहीं गुजरा था जिसमें दुनिया के अंदर कोई नबी या रसूल ना हो, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र और अजीम रसूल की जिस तरह तजलील की गई, उनकी वालिदा और उनकी शान में जो रुस्वाकुन जुमले कहे जाते रहे, हत्ता कि जिस तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने तक का सिलसिला पहुंच चुका था, ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ था। उस जमाने में सबसे इबरतनाक मौत सलीब की मौत थी। ये इंतहाई जिल्लत की मौत समझी जाती थी। किसी मुजरिम की तलवार से गर्दन काट देना या उसे फांसी दे देना इतना नफरत अंगेज और तकलीफ दे नहीं होता जितना किसी शख्स के हाथ पांव में कील ठोंक कर उसे किसी लकड़ी की सलीब पर लटका देना होता है। वो शख्स घंटों तकलीफ की हालत में लटका रहता है, जबकि लोग उस मुजरिम का बुलंदी से तमाशा देखते हैं। इस जमीन के खालिक व मालिक को अपने नबी की ये तजलील पसंद ना आई और फिर अरसा दराज तक दुनिया में कोई रसूल न भेजे गए और 650 साल यूं ही गुजर गए। बनी इसराइल को पूरी दुनिया में दर बदर बिखेर दिया गया और इस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद उनके यहाँ दोबारा कोई पैगंबर नहीं आया। 650 साल तक ये दुनिया किसी भी राहबर के बगैर वक्त गुजारती चली गई। इंसानों को इस पूरे अरसे के दौरान कोई सीधी राह दिखाने वाला नहीं था, चुनांचे दुनिया अपने रब और अच्छाई के रास्ते से गाफिल होती चली गई। इंसानी तारीख का वो 650 साल वाला दौर फस्को फजूर पर मबनी था। दुनिया अपने रब को भुलाकर मुकम्मल तौर पर शैतान की पैरवी इख्तियार कर चुकी थी। इससे पहले जब भी किसी कौम की नाफरमानी पर उसे अजाब आता तो उस उम्मत के अलावा पूरी दुनिया इस अजाब से बची रहती थी, लेकिन इस बार पूरी दुनिया ही अपने पैदा करने वाले को भुला चुकी थी और बुतों को अपना खुदा मानकर अल्लाह से मुंह मोड़ चुकी थी। यानी पूरी दुनिया ही जब अल्लाह रब्बुल इज्जत से सरकशी इख्तियार कर ले तो फिर इस तरह के अजाब तो आते हैं। नाज़रीन, अगर आप गौर करें तो आज भी आहिस्ता आहिस्ता वैसे हालात पैदा होते चले जा रहे हैं। जना, जुए और बेरारवी के अड्डे आज भी वैसे ही हैं। वैसे ही लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत को भुला रहे हैं। तो उस वक्त के आने से पहले अल्लाह की बारगाह में कसरत से तौबा इस्तगफार करें और बेरारवी से बचें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमाले साले करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।